and assalamu alaikum to all of you for joining this series of talks that I plan to do. Very early, I must highlight to you that the purpose of these talks is essentially to try and identify areas that I think are usually a little gray or we're not really sure about, and therefore focus on those areas to get them into the white and see if we can really make a difference in our practice of psychiatry. I will very openly and straightforwardly start by saying that this will not be a preparation for any exam. So if you think that I have any plans of trying to train you for an exam situation, probably I may not be able to do that very effectively. But the idea is that we try and make your practice of mental health different, or augment that practice of mental health. जो आप अभी भी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, I'm sure. तो उसको is there a place for something more? Can we add value to already very good mental health practice that you must be doing? हाँ, उसमें obviously ये मैं आपको जरूर assure करता हूँ कि जो भी एग्जाम होता है, जो भी इम्तिहान होता है, उसमें जो चीजें पूछी जाती हैं या जो चीजें assess की जाती हैं, they are largely these areas that we'll be talking about. So there is a relevance to what you are going to be asked in an exam situation, but the purpose of these talks is not really preparation for examinations, is to enhance your practice of mental health the way you are doing it. दूसरा इसके अंदर मॉडल जो है वो सर्विस ओरिएंटेशन का है. Can we change the kind of mental health services that you are providing, both in terms of their layout, in terms of their quality, in terms of the range and intensity with which you are providing those services, the range of services that you're providing, etc. उनको थोड़ा influence करके क्या जो आप अभी कर रहे हैं उसको और ज़्यादा अच्छा किया जा सकता है, या थोड़ा मुख्तलिफ एंगल से इसको देखा जा सकता है in the light of about 3.5 decades of sharing with you of what I think serves patients a little better, in my very humble opinion. So it is in no way, अगर आप कुछ मुख्तलिफ कर रहे हैं उससे कि जो मैं कह रहा हूँ, तो it does not automatically mean कि आप वो सही नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है. It's just providing a parallel to you. अच्छा, इस तरह भी किया जा सकता है, and then as mental health professionals, you can give it a try, see if it makes a difference, and if it works for you, because it is based on experience and all the learning that I have had in the years, then you can adopt it if it works. If it doesn't, drop it. There's nothing holy about what is going to happen here. There's nothing holy in science anyway. So कोई परेशानी की बात नहीं है. अगर आपको लगे कि नहीं लेकिन मैं तो इसको जरा और तरह से करती हूँ या करता हूँ, तो कोई परेशानी की बात नहीं है. And if it is working for you, and if it is scientifically grounded, or it is based on some other scientific evidence that you have, that you find more relevant and effective in your practice, please continue to do that. So this is a disclaimer. दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा confusion इस talk से पहले इसकी logistics के बारे में था, जो मैं clarify करना चाहता हूँ अगली सारी talks के लिए. अभी ये थोड़ा सा एक limbo में, और first time था तो मैं शायद इतना effectively communicate नहीं कर सका. The organizers, the healing triad, of which I am very much a part, but आप समझिए कि जो लोग मुझे पुराने जानते हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं कितना ignorant हूँ, कितना कैजुअल हूँ चीज़ों के अंदर, और उसी कैजुअलनेस को रखते हुए आप मुझे इसमें you forgive me for this confusion that happened. मेरे ख्याल में मेरा जो भी काम towards post graduate trainees है वो totally free है. Free is a horrible word. I think they have earned that. Being a postgraduate trainee in mental health of any kind, whether it's a psychologist, you're a social worker, you're a therapist, you're a psychiatrist. If you are a postgraduate trainee, I owe whatever I know, the little that I know, with you without any costs, because there is no cost for training of a professional who has not entered the practice of psychiatry. However, if you've entered the practice of psychiatry, if you're seeing patients, you have a psychiatric or a psychologist's or a psychotherapeutic practice, THT might like you to contribute towards a cause that we do at THT. We have a cause, and that is
treating patients who are underprivileged free. उसकी खैर डिटेल का ये मौका नहीं, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूँगा कि please let your all other colleagues know. If you're a postgraduate trainee and you just write to the administrator that you're a postgraduate, you don't have to prove anything about it. I trust you. I think if you say that you're a postgraduate trainee, then you are a postgraduate trainee, and you don't have to put any evidence up. Just stating that is good enough. So please enroll. Don't have to pay anything at all. But if you're a practitioner, it might be a good idea to contribute towards that cause through some fee that is being charged on this interaction. So these are few disclaimers. मैंने बहुत time ले लिया इस introduction में. Let me not waste any more time and get on with the issue of how do we run an outpatient service. Now, it is not just a way by telling you कि अच्छा जब OPD में मरीज है तो उसको कैसे देखना है. तो बिल्कुल वो भी मैं थोड़ा सा आपके साथ प्रैक्टिस करूंगा, और फिर आपके व्यूज और कंसर्न्स और अगर कोई स्किल उसके अंदर स्पेसिफिकली आप चाह रहे हो तो डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगा आपको. लेकिन मेरा मकसद ये होगा कि आप अगर एक सर्विस का हिस्सा हैं या आप सर्विस रन कर रहे हैं, तो आपका आउट पेशेंट डिपार्टमेंट किस तरह का होना चाहिए आइडियली स्पीकिंग, और उसको किस तरह से आप और ज्यादा उसकी सर्विसेज को ऑगमेंट कर सकते हैं, चाहे आप ट्रेनी हैं चाहे आप कंसल्टेंट हैं, किसी भी लेवल पर एज अ mental health professional. So let us go on to our slides. I'll share these slides with you. और उसमें जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ बिल्कुल शुरू में आपसे अर्ज करूंगा वो इस हवाले से होगी कि आमतौर पर लोग साइकियाट्रिक या साइकोलॉजिकल या साइकोथेरेप्यूटिक सेटिंग्स में जब आते हैं तो वो क्या करने आते हैं वहाँ पे. I mean, what is it that they are looking for, and what are psychiatric outpatients all about? तो वो वाला पार्ट हम जरूर आपके साथ बिल्कुल शुरू में हाईलाइट कर देंगे ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को जहन में रख के अपनी सर्विस को आगे बढ़ाएं. आमतौर पर जब हम ये सवाल करते हैं लोगों से, और मैं कई फोरम्स पर ये सवाल करता हूँ कि आपको अंदाजा है कि आप जो सर्विस रन करें इसका मकसद क्या है, तो वो होता है कि हाँ वो यही होता है ना कि लोग जब उनको प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास आते हैं तो हम उनको आउट पेशेंट्स में देखते हैं. तो मैं कहता हूँ जी बिल्कुल ठीक है, पर इज दैट ऑल दैट यू डू? तो बड़े कंफ्यूजिंग से आंसर्स होते हैं. तो मैं आपके साथ अभी क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा इन आंसर्स को कि हम क्यों आते हैं आमतौर पर इन सेटिंग्स के अंदर और क्या करने आते हैं वहाँ पर. Okay, so taking a little time. So, मैं जरा इसको फुल स्क्रीन कर लूँ आपसे. अच्छा, मैं ये चीजें जो आपके सामने रख रहा हूँ ना, मैं इनको पढ़ूंगा नहीं, तो मैं आपसे जरा सा ये चाहूंगा कि आप जल्दी से इसको स्कैन कर लीजिए कि ये मेरे ख्याल में रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोग किसी भी साइकियाट्रिक ओपीडी में आते हैं. उस साइकियाट्रिक से मुराद यहाँ इंक्लूसिव है. इफ यू हैव अ साइकोलॉजिकल सर्विस, इफ यू हैव अ साइकोथेरेप्यूटिक सर्विस, तो कुछ लोग तो आपके पास इन वजूहात की बुनियाद पर आ रहे होते हैं. आप इन्हें देख लीजिए एक दफा. तो यहाँ मैं बिल्कुल शुरू में, आंसर आपने पढ़ लिया होगा, मैं भी आपकी स्पीड से पढ़ने की कोशिश कर रहा था इसको. that basically when somebody comes to the psychiatric OPD, तो वहां पर जो लोग OPD में आते हैं आपके पास बड़ी बड़ी मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं. they are not homogeneous in any way, और मुख्तलिफ जरूरतों के लिए आते हैं, मुख्तलिफ मकासद के लिए आते हैं. लेकिन अगर आप ये सारा स्प्रेड देखें जो मैंने आपके सामने रखा हुआ है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने मुख्तलिफ, एक आदमी जो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट इस हवाले से लेने आया है कि उसको साइकियाट्रिक बेसिस के ऊपर छुट्टी चाहिए, क्योंकि उसको ऑलरेडी एक ट्रीटमेंट आपने दी हुई है और वो अपने दफ्तर गया था
और उन्होंने कहा कि जनाब वो जो डॉक्टर था ना उससे लिखवा के लाइए कि आप अगले 10 दिन छुट्टी पर होंगे। वो यहाँ सिर्फ ये करने आया, वो यहाँ से होके जा चुका हुआ है या उसको ट्रीटमेंट भी मिल रही है, वो बेहतर फील कर रहा है, लेकिन वो अगले 10 दिन छुट्टी पर जाए, तो वो सिर्फ इतने लिखवाने आया। तो अब आप सोचिए कि ये बंदा 9 बजे आया था और ये हो सकता है कि 1:30 बजे तक इस एक जुमला लिखवाने के लिए एक बिजी आउट पेशेंट में बैठा रहे कि अलाउड टू स्टे इन बेड और अलाउड टू नॉट कम टू द ऑफिस फॉर 10 डेज। ना इसकी कोई असेसमेंट होनी है ना ये कोई ड्रग अब्यूजर है, ना ये कोई इसको डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, ना ये कोई इमरजेंसी है, पर ये उसी जगह के ऊपर बैठा हुआ है जिसको हम अपना ओपीडी कहते हैं, साइकियाट्रिक ओपीडी। और उसी में एक ऐसी बच्ची भी बैठी है जिसने घर में आज सुबह कट लगाए हैं, और यहाँ पर ही हो सकता है एक ऐसा भी शख्स बैठा हो जो सिर्फ ये चेक करने आया कि सुसाइड से पहले क्या मैं एक चांस दे सकता हूँ उन लोगों को जो कहते हैं कि हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, मैं उनसे बात करके देखूं। ये भी इसी ओपीडी में बैठा है। यहाँ एक ऐसा शख्स भी बैठा है, लेडीज जेंटलमैन, जो बेसिकली who's having delusions, who thinks that there are people who are watching him, there are cameras in this room and he's being recorded right now. ये भी इसी जगह पे बैठा है। और यहाँ पर हो सकता है एक ऐसा शख्स भी बैठा हो जिसको पिछले एक हफ्ते में 2 से 3 दफा पैनिक अटैक्स हो चुके हैं, जिसमें उसको फॉर अबाउट 10 मिनट्स लग रहा था कि वो मर जाएगा, और उसके अलावा बिल्कुल ठीक ठाक है। आउट ऑफ दोज 10 मिनट्स ही वाज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। और वो भी खास स्पेस में उसको ऐसे हुआ था, फिर कुछ नहीं हुआ बीच में, क्योंकि वो स्पेस में गया ही नहीं उसके बाद। So can you imagine what is going to happen to these people sitting under the same roof? My God, मैं अब अपने आप को इमेजिन कर रहा हूँ ये 4-5 रोज जो मैंने अपने सामने रखे हैं, और मुझे पता है कि टिपिकल साइकियाट्रिक ओपीडी सर्विसेज के जो हैं उनके अंदर क्या केओस होता है, क्या सेटिंग्स होती हैं उसके अंदर। और यहाँ पर आप देखिए कि वो भी मरीज होते हैं जो इतने सीरियस होते हैं, वो लाए ही इसलिए गए होते हैं कि दे आर डिसरप्टिव, दे आर ऑल ओवर द प्लेस, दे आर एग्रेसिव, दे आर हॉस्टाइल, वो चीख रहे होते हैं एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, दे आर एक्चुअली पोटेंशियली वायलेंट टुवर्ड्स सेल्फ और टू अदर्स। वो भी इधर ही बैठे हैं इसी जगह के ऊपर, वो भी भाग के उधर जा रहे हैं, कोई भी भाग के उधर जा रहे हैं। यहाँ हो सकता है एक आदमी को यहाँ पर कोई एपिलेप्टिक या हिस्टेरिकल फिट भी हो रहा हो, डिसोसिएटिव फिट भी हो रहा है इसी ओपीडी में। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई ये भी फील कर रहा हो कि उसके अंदर जिन आ गया है और उसको भी एक डिसोसिएटिव स्टेट पोजेशन की यहीं पर हो रही है। सो मेरा मकसद कहने का सिर्फ ये है कि प्लीज अंडरस्टैंड करिए कि ये जो ओपीडी है दिस इज अ पॉटपुरी, और यहाँ पर कितना कुछ हो रहा होता है आउटसाइड, येट आप जिस दफ्तर में बैठे होते हैं वहां पर ना कोई आवाज आती है ना कोई शोर आता है। वहां तो जनाब आपकी कुर्सी मेज और 2 और कुर्सियां वहां पर पड़ी होती हैं और आप वहां अंदर बैठे होते हैं। बाहर खड़ा होता है एक शहजादा, वो शहजादे का काम ये होता है कि वो डिसाइड करेगा कि डॉक्टर साहब को कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। इसकी कैफियत क्या होती है, ये कौन बंदा है, ये कितना ट्रेंड है, व्हाट इज ही ऑल अबाउट, वो साइकाइट्री को कितना जानता है, वो एक्चुअली मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल खुद है या नहीं, या वो कोई थानेदार है, थानेदार यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स में है, या वो कोई एक इस साइज का डशकरा है जो इस बात को देखता है कि कोई बदतमीजी तो नहीं करेगा डॉक्टर साहब के साथ, इस स्टाइल वाला भी कोई बंदा है जो कि बाहर खड़ा हुआ है। तो ये जरा ख्याल रखने की चीजें हैं। मैं इसलिए ये सब आपसे बातें कर रहा हूँ कि मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि एक्चुअली ये जो लोग हैं इनमें किस किस किस्म के मसाइल के लोग हैं, और उनमें से किस तरह के पेशेंट्स को एक्चुअली बिल्कुल डिफरेंट ट्रीटमेंट की और हैंडलिंग की जरूरत होती है। तो क्या एक अच्छा ओपीडी इस बात का एहतमाम नहीं करेगा कि वो इन मुख्तलिफ लोगों के लिए थोड़ी सी रीऑर्गेनाइजेशन और अरेंजमेंट करे स्ट्रक्चर में, जो मैं आपको भी सजेस्ट करने लगा। आप उससे एग्री कर सकते हैं, आप उससे ना एग्री कर सकते हैं, लेकिन ये जो पेशेंट्स की लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है, आप इसको एक नजर देखिए। क्या ये डिजर्व नहीं करते कि ये थोड़े से मुख्तलिफ माहौल में सॉर्टेड हों, प्लेस्ड हों, इनकी सेटिंग थोड़ी सी मुख्तलिफ हो? आप जरा देख लीजिएगा इस लिस्ट को।
अब मुझे आपका नहीं पता, आप पढ़ लें लिस्ट। मैं आपसे सवाल सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि आपका इसमें से फेवरेट पेशेंट कौन सा है। मैं आपको अपना बता देता हूँ, मेरा फेवरेट पेशेंट सीटी पेशेंट होता है। ये सीटी पेशेंट वो होता है, ये सीटियां नहीं मारता, ये एक्चुअली आता है कि आप सीटी मारे उसको देख के कि क्या बात है। ये देखो ना, ये हुआ है ना, मरीज एंटर हुआ है, उसने डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं फर्स्ट क्लास, जो दवाई आपने दी ये बड़ी जबरदस्त है, पर मुझे ये दवाई और आप 1 महीने के लिए लेते हैं। आप ला यार, ये है ना मजा है। आपने पकड़ा, उसके ऊपर लिखा सीटी, यानी कि कंटिन्यू ट्रीटमेंट 6 वीक्स 2 वीक्स 4 वीक्स। हाँ बेटा कितनी और चाहिए सर? 3 महीने की लिखते हो तो क्या बात है, 3 महीने बाद आवांगा, वो गया जनाब। यार ये देखो ना, इसलिए मैं बना था साइकियाट्रिस्ट एक्चुअली। ये होता है सीटी का सही बंदा। और ये आदमी बीमार है कि नहीं, ये अभी बाहर जाके जो दवाइयां यहाँ से इशू करा रहे हैं, क्या इससे वो गोभी और टमाटर खरीदेगा दे के किसी को दवाइयां, और घर जाके पकाएगा, और हो सकता है कि अगली दफा वो साथ वाले डॉक्टर साहब के पास सीटी कराने आ जाए। आपके पास तो शायद सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड्स नहीं होंगे इस सारी सिचुएशन के, यहाँ लोग सीटी के पेशेंट्स को लेकर आते हैं। सो मेरा मकसद कहने का ये है कि यहाँ पर जरा आप डाइवर्सिटी देखिए जरा पेशेंट्स की, और क्या आप नहीं चाहेंगे कि ये वाली सूरत हाल में थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करें उस सर्विस को जिसमें आप हैं। साफ ज़ाहिर है कि मेरा ये जो माहौल है जिसको मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हर प्रैक्टिस में ऐसा नहीं है। बहुत सारी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जहां पर लोग अपॉइंटमेंट से आते हैं, वो आपसे पहले ही आपको जानते हैं, वो आपको पता है उनको किसी ने रेफर किया हुआ है। टर्शियरी केयर प्रैक्टिसेस, मे बी साइकोथेरेपी प्रैक्टिसेस, जहां पर लोगों को पता है और वो एक खास वक्त से आते हैं, खास खूबसूरत माहौल में बैठ के थोड़ा सा टीवी देखते हैं, इतनी देर में उनकी बारी आ जाती है और वो अंदर चले जाते हैं। ये बातें शायद उनके लिए इतनी रेलिवेंट नहीं है, लेकिन अभी मैं बात करूंगा तो उनके बारे में भी मजीद बात होगी। सो ये ज़हन में रखिएगा कि प्लीज गो बैक tomorrow and see your outpatients if they have this diversity of patients in that room or not. Okay. तो जनाब मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक दफा अपने ओपीडी में एक पेशेंट या पेशेंट अटेंडेंट की नजर से उस अंदाज में आइए जिस अंदाज में पुराने वक्तों के खुलफा अपने अवाम के मसाइल देखने के लिए बाहर निकला करते थे। पुराने वक्तों के रूलर्स अपनी राया के मसाइल को समझने के लिए निकला करते थे। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज वाले लोग आपकी राया हैं, जरा उनकी नजर से अपने ओपीडी को एक दफा विजिट कीजिए। ये मेरी पहली रिक्वेस्ट और आपसे रिकमेंडेशन है। इफ यू रियली वांट टू बी an empathizing mental health professional, प्लीज बुकल मार के, और आजकल तो मसला ही कोई नहीं है, वो क्या है ये पहन लेना, ये जो मेरे पास पड़ा हुआ ये पहने, कोई आपको बचाने का नहीं है, कोई भी नहीं आजकल वैसे किसी को बचाना। तो आप जनाब ये पहन के जाइएगा और बनिएगा आप एक साइकियाट्रिक पेशेंट या उसके अटेंडेंट, और फिर गुजरिएगा, देखिएगा कि क्या गुजरती है कतरे पे गौर होने तक। ये जो सूरत हाल है ना, किस किस सूरत लेयर्स में से गुजरता है उसको यहाँ, और ये एंट्री आप ओपीडी की गेट से शुरू कीजिएगा अस्पताल के, या अपनी जो भी सर्विस है उसको एक्सेस करने का जो प्रोसेस है वो बन के शुरू कीजिएगा कि आप हैं एक साइकियाट्रिक पेशेंट और आपने मिलना है डॉक्टर मवद्दत राना से। अब आपके ऊपर क्या गुजरती है, ये है कहानी जो मैं आपसे कह रहा हूं कि वो लेयर्स। तो फिर आप कामयाब होंगे अपनी सर्विस को विजिटर फ्रेंडली बनाने में। नोट्स बनाते जाइएगा क्या क्या हुआ है, और अगर आपने ये काम एक दफा किया एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा आपको कि अगर आज की गुफ्तगू में आप ट्रेनी हैं तो जबरदस्त। तो फिर तो आप, मैं समझता हूं कि जब कंसल्टेंट बनेंगे इंशाल्लाह या ट्रेनर बनेंगे तो आप एक ऐसा सबक हासिल कर चुके होंगे जो आपको किसी ट्रेनर ने नहीं पढ़ाना, एंड दैट वुड बी a personal experience of going through the layers of being a psychiatric patient before his or her interaction with the mental health professional, the psychiatrist, the psychologist, the psychotherapist. उस तक पहुंचने में किस किस जिंदगी के मराहिल से वो गुजरा आपकी सर्विस में, और फिर उसके हिसाब से अपनी सर्विस को डिजाइन कीजिए।
लेकिन अगर आपको मौका मिला है कि आप थोड़ी बहुत चेंजेस ला सकते हैं अपनी ओपीडी में, तो प्लीज, आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि साइकियाट्रिक ओपीडी कहीं अस्पताल के ऐसे कोने में जहां किसी को पता ना लगे कि यहाँ पर साइकाइट्रिस्ट बैठते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, यहाँ पर सोशल वर्कर्स होते हैं, यहाँ पर साइकोथेरेपी जाती है। ना 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 ना, या इनको ऐसा डंप करो किसी जगह के ऊपर कि जहाँ किसी को नजर ना आए। लेकिन हेल्दी नॉर्मल सोसाइटीज और फ्यूचरिस्टिक mental health centers would be those centers that be closer to actually the general OPD. उससे स्टिग्मा कम होता है, स्विफ्टली लोग जा सकते हैं, और जब वो आते हैं तो उनको ये नहीं कहना पड़ता कि हम मेंटल हॉस्पिटल जा रहे हैं, हम साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। वो कहते हैं हम बेनजीर भुट्टो अस्पताल जा रहे हैं, हम आरजीएच जा रहे हैं, हम होली फैमिली अस्पताल जा रहे हैं, हम अस्पताल जा रहे हैं। उनको बस इतना ही कहना, ओपीडी जा रहे हैं, कौन सी ओपीडी जा रहे हैं ये तो कोई नहीं पूछता ना। तो try and place your service as close to the general OPD setting. उससे बहुत आप पेशेंट्स को कंफर्ट करेंगे और इजी करेंगे जिस तरह आप चाहेंगे। इमरजेंसी के भी करीब हो आप तो और भी अच्छा है, और अगर यहाँ से दूर ही है तो फिर कोशिश करें किसी मेडिकल सेटिंग के पास। उसके बड़े फायदे हैं, अभी मैं असेसमेंट में आपको बताऊंगा कि उसके क्या क्या फायदे, लेकिन मेडिकल सेटिंग के करीब होने से भी आपको बहुत फायदा होगा। अब जनाब आ जाएं, आप ओपीडी में पहुंच गए, दिस इज नाउ साइकियाट्रिक ओपीडी। अब इसको हम स्टडी करते हैं कि इसकी एनाटॉमी क्या होनी चाहिए। ओके जनाब, तो इसकी एनाटॉमी में मैं आपसे अर्ज करूं कि सबसे पहले ये इंश्योर कीजिए कि रिसेप्शन के ऊपर कभी एक आदमी ना या खातून या एक नहीं होना चाहिए। मुझे मालूम है कि आप सब एक अल्लाह के मानने वाले हैं, लेकिन ये तौहीद का एग्जीबिशन का मौका नहीं है। आपको इंश्योर करना है कि यहाँ पर रिसेप्शन पर at least simultaneously 2 to 3 people trained in communication skills, computing skills and mental health skills। और वो skills में अभी mental health वाली आपको बताने लगा, लेकिन ये प्लीज इनमें से ये जो लोग आपके, they are the face of a psychiatric service। मैं आपसे जो यहाँ बैठे हैं लोग हमारे इम्तिहानों में इंटरेस्टेड है, इम्तिहान पास करना चाहते हैं, दिस इज समटाइम्स अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और एन एमसीक्यू एज वेल दैट इज आस्क्ड, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स the typical setting of a psychiatric OPD। so you're not on a tangent on this slide कि ये क्या बातें हम करें, इसी बातें पूछी जाती हैं बात का कि अच्छा आप एक डिजाइन कर रहे हैं OPD सर्विस, ऑस्की स्टेशन भी बनते हैं इसके ऊपर। what does a typical futuristic good sensible mental health OPD look like? तो ये ज़हन में रखिएगा कि ये इट इज नॉट ऑन ऑल दैट बिग टेंजेंट दैट वी आर टॉकिंग राइट नाउ। यहाँ पर रिसेप्शन स्टाफ की एक ट्रेनिंग ये होनी चाहिए कि वो ट्रियाज कर सके, और मुझे उम्मीद है कि आप ट्रियाज का मतलब समझते होंगे। ट्रियाज का मतलब ये होता है कि बेसिकली किस शख्स को फौरी कंसल्टेशन की जरूरत है और उसको एक साइकाइट्रिस्ट ने या एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ने फौरी तौर पर देखना है, एक थोड़ा सा इंतजार कर सकता है, और एक वो है कि जिसको वक्त गुजरने का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और उसकी जो वो इश्यूज हैं वो कोल्ड नवियत क्या है, और अभी हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएंगे। ये ट्रियाज बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ आपका एक रोल आने वाला है, लेकिन ये ट्रियाज सबसे पहले आपका रिसेप्शन का स्टाफ, उससे आपने ट्रेन करना है कि ये जो लोग हैं जो कि जिनको जो एक्यूटली इल हैं, ये किस तरह के नजर आते हैं, ये किस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं, ये किस तरह का बिहेवियर होता है, इनकी हिस्ट्री क्या होती है, इनकी सेटिंग क्या होती है। और इसमें बड़े इंटरेस्टिंग लोग आते हैं, मैं भी बात करता हूँ आपसे। लेकिन अपने ओपीडी में इंश्योर कीजिए, और ये बहुत ही नाजुक बात है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, और अगर नहीं है आपके ओपीडी में तो प्लीज दिस इज समथिंग दैट यू शुड रियली फाइट फॉर, कि अपने ओपीडी में एक साइड रूम जरूर बनाइए जिसको आप इमरजेंसी केयर रूम कह सकते हैं या साइकियाट्रिक इंटेंसिव केयर रूम कह सकते हैं। यहाँ पर हर उस मरीज को शिफ्ट करने की जरूरत है जो कि लाउड है, यानी ये या तो बहुत ज्यादा ऊंचा बोल रहा है, या वो बहुत वायलेंट है, या उसको फिट पड़ रहे हैं, या वो बहुत ही ऐसी बातें कर रहा है which do not really make any sense to anybody around। Remove these people into this emergency room as early as they arrive। आए, दूर से देखें ये वाले रिसेप्शन स्टाफ के लोग, उनको इधर ही
आप सोच नहीं सकते कि अगर आपने इस पेशेंट को नेक्स्ट टू बिठा दिया उस पैनिक अटैक वाले मरीज के, जिसका मैंने आपसे पहले जिक्र किया, वो यहीं से उठ के भाग जाना, क्योंकि उसको दूसरा पैनिक अटैक अभी होने लगे यहाँ पर आपके। और मैं इस तरह का बीमार हूँ कोई, ये जिसके साथ में ये बिठा दिया, मुझे क्यों कहा उन्होंने साइकियाट्रिस्ट को दिखाना, पागल हूँ मैं? तो यू वुड लूज अ पेशेंट दैट यू वुड हैव क्योर्ड, और वो फिर चला जाएगा कहीं इधर उधर घूमने और गुम जाएगा, तो पता नहीं दोबारा कितने टेस्ट कराने के बाद वापस आएगा। सो प्लीज इंश्योर कीजिएगा कि इस बंदे को PSYCHIATRIC साइड, इस तरह एक सीवियरली मेंटली सबनॉर्मल, मेंटली हैंडीकैप्ड एक बच्चा, माँ लेकर, उसके अब्बा लेकर, who is passing stool or urine and he's smelling like anything, वो आ गया है, वो बीच में पड़ा हुआ है, साथ ही उसके OCD का एक पेशेंट बैठा। तो भाई ठीक है, मतलब OCD के मरीजों की एक बिहेवियरल ट्रीटमेंट जो है वो फ्लडिंग भी होती है, पर ये जरा ज्यादा ही हुई है फ्लडिंग, और ये बड़ी गड़बड़ होने वाली है, ये भी भाग जाएगा बंदा। सिमिलरली आपके डिप्रेसिव रिएक्शन के या एक माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन के मरीज को आपने बिठा दिया पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया के साथ, तो जनाब वहां भी एक क़यामत आने वाली है अभी थोड़ी देर में, और गड़बड़ होने वाली। सो ये जो साइड रूम है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कमरा है और बड़ी ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है जहां पर आपको इंश्योर करना चाहिए। Similarly, good futuristic centers are those places which also have what they call a solace room, silent room। ये वो जगह होती है जिसको आप बड़ा अच्छा प्यारा सा सजाते हैं और उसको अच्छा करके ऐसा कर देते हैं कि कोई आदमी जो बहुत ज्यादा अपसेट और परेशान हो, बट ही इज इंट्रोस्पेक्टिव, ही डजंट रियली वांट टू टॉक टू एनीबॉडी, उसको ऑफर किया जा सके कि अगर आप थोड़ी सी देर बहुत अपसेट और परेशान हैं तो आप इस कमरे में आके बैठ जाए, यहाँ पे हल्की फुल्की मौसीकी भी आप लगा सकते हैं, थोड़ा सा उसको ठंडा सा माहौल, कुछ मैगजीन्स भी रख के दे सकते हैं, बेशक टीवी शीवी ना लगाइए वहाँ पर, और उसको मौका दीजिए कि वो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट कर सके। इसी तरह से अच्छी ओपीडीज में एक कमरा वो भी होता है जहां पर आप सिर्फ मरीज की हिस्ट्री नहीं लेते, बल्कि आपने सिलेक्ट किया होता है कुछ पेशेंट्स को जिनका मैं अभी जिक्र करूंगा, कि आप उनके साथ फैमिली के साथ काम करना चाहते हैं और फैमिली सेशंस करना चाहते हैं उनके साथ, उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको भी आप उनको दाखिल नहीं करना आपने, लेकिन उनको आप साइड रूम में रखना चाहते हैं। इन कमरों को हम फैमिली इंटरेक्शन, इंफॉर्मेशनल केयर रूम्स, रीएट्रीब्यूशन सेशन रूम्स भी कह सकते हैं। इनके अंदर एक वाइट बोर्ड, एक फ्लिप चार्ट, ब्लैक बोर्ड, जो भी आप इस तरह की चीज जहाँ पर चीजों को एक्सप्लेन करने, ऐसा एक राउंड टेबल सा बना के उनके गिफ्ट चेयर्स को रख सकते हैं। बड़ा सिंपल सा कमरा होता है, मकसद होता है वहां पर गुफ्तगू करना ज्यादा लोगों से मरीज के अलावा जो एक रोल प्ले कर रहे हैं। मैं ये भी आपसे अर्ज करूं कि ये जो वेटिंग एरिया है, इस सेफ्टी बड़ी जरूरी है, इसके अंदर बहुत ज्यादा शीशे, इसके अंदर ओपन स्विचेस, इसके अंदर ऐसी चीजें जो कि पोटेंशियली हैजर्डस और डेंजरस हो सकती हैं, जो कि अगर तोड़ ली जाएं तो वो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने में इस्तेमाल हो सकती हैं। उसमें इस तरह का फर्नीचर जो कि आसानी से लिफ्ट किया जा सकता है, जैसे छोटे छोटे स्टूल्स और चेयर्स आप रख लें, वो बहुत खतरनाक सूरत हाल पैदा करते हैं। तो जरा सा इसको कि एस्थेटिक्स भी ना डैमेज हो, लेकिन आप वहाँ पर इस बात का भी एहतमाम करें कि वो एक सेफ स्पेस हो, और अच्छे ओपीडीज वो भी होते हैं थोड़ी सी मौका दें मरीजों को कि वो उठ के बाहर जा सकें, थोड़ी सी निस्बतन खूबसूरत जगह, तो ग्रीन्स हों वहाँ पे, थोड़े से प्लांट्स हों, मे बी परिंदों की आवाज़ें भी वहाँ आ रही, तो वो थोड़ा अच्छा फील करें वहाँ से। जब वो थक जाएं बैठे बैठे आपके इंतज़ार में, थोड़ी सी रिलीफ के लिए बाहर चले जाएं। यहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक फैसिलिटी हर ओपीडी में ऐसी होनी चाहिए जहां पर वो आपका पसंदीदा मरीज जा सके। आप क्लर्क को कह के कभी कभी वहां अपनी ड्यूटी भी लगवा लें, जब आप बहुत ज्यादा तंग हो गए हो, सीटी करने का आपको शौक हो, वहां बैठ के आप सीटियां मारिएगा और सीटी एडवाइस कीजिएगा लोगों को, उनके साथ गपशप कीजिएगा। यू हैव अर्न दैट राइट, लेकिन डेली वहां ना जाइएगा प्लीज, क्योंकि फिर आप इतने अच्छे साइकियाट्रिस्ट नहीं बन सकेंगे। सो सीटी के लिए लोगों को 3-3, 4-4 घंटे इंतजार कराना और यहाँ रखना, ये भी ज्यादती होगी। सो इट विल टेक नाउ अ वेरी इंटरेस्टिंग सेटिंग फॉर यू, जिसका मैं आपके सामने कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखा सकूं कि ये क्या सिचुएशन है। थोड़ा सा यहाँ अंधेरा हो गया है, सो अब हम कोशिश करते हैं कि ये सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हो जाए। हम इसको यहाँ रख लेते हैं। तो जिंदाबाद जी।
तो ये जनाब एक ओपीडी सेटिंग है। अब मैं चाहता हूँ जरा और स्पेसिफिक बातें हम कर लें कि अच्छा जनाब, अब ये सारी सेटिंग में से आपने ट्रियाज कर लिया। यहाँ मैं आपसे ये अर्ज करूं कि एक अच्छा साइकाइट्रिस्ट वही होता है कि जो अपने ओपीडी को एवरी 1 आवर और सो विजिट करता है, और वहां क्या करता है, वेटिंग एरिया ट्रियाज करता है। ये मैं भूल गया था आपसे बात करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अच्छा साइकाइट्रिस्ट वो है जो अपने वेटिंग एरियाज में दिन में 3 से 4 दफा ओपीडी टाइमिंग्स को विजिट करता है, और वहां क्या करता है कि वो जो लोग जो रिसेप्शन स्टाफ की ट्रियाज से डिटेक्ट नहीं हुए, उनको जाकर डिटेक्ट करता है कि कोई पोटेंशियली हार्म क्रिएट करने वाला सेल्फ और अदर्स को, कोई पोटेंशियली बहुत सीरियसली इल पेशेंट, somebody who's having a severe acute drug reaction, or somebody who's in acute emergency, or somebody who's developed some kind of high temperatures in that setting, उसको कोई medical complication या medical problem तो नहीं होगी, वो तो नहीं आ गया वहां पर इतनी देर में जब आपने लास्ट विजिट किया था। तो ये भी जरूर कीजिएगा। वेटिंग एरिया ट्रियाज by a psychiatrist is a very very important step। जो भी आप सर्विस रन कर रहे हैं उसमें अपने वेटिंग एरिया को 1-2 घंटे के बाद जरूर विजिट कीजिए, और वो जो एक्यूटली इल लोग हैं उनको फिर आसानी हो जाएगी आपको अंदर बुलाने में जल्दी। अब आगे जनाब पेशेंट अंदर आपके पास आपके ऑफिस में, और यहाँ से कुछ बहुत ही जरूरी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। टिपिकल मेडिकल तरीका जो होता है ऑफ डीलिंग विद पेशेंट्स हु रिपोर्ट टू ओपीडी, वो बड़ा मुख्तलिफ होता है, वो बहुत मुख्तलिफ होता है। और वो क्या होता है, आइए तशरीफ रखें, बैठे जी, आपको क्या तकलीफ है, यहाँ से शुरू होता है। तो ये जब आप ये वाला जुमला अपने साइकियाट्रिक पेशेंट्स के साथ करने लगते हैं तो उससे बड़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, और वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं इस तरह के जुमलों के साथ। तो मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा कि क्या तरीका होता है जब आप कोई मरीज आपके साथ आके बैठ जाए। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो मैं आपसे ये अर्ज करूँ कि अपने लिए जहाँ आप इस तरह की कुर्सी बनवाएं और बहुत कंफर्टेबल चेयर अपने लिए बनाएं, जो कि जरूर बनाइए। डोंट सिट ऑन अ डाइनिंग चेयर इन एन ओपीडी। आपका कंफर्टेबल होना, देर तक बैठ के किसी की बात सुनना आपके प्रोफेशन का हिस्सा है, तो बहुत कंफर्टेबल आपकी चेयर होनी चाहिए। अगर आपको अस्पताल वाले नहीं बना के देते तो भाई खुद थोड़े से पैसे लगा के बना लो। दिस विल बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट दैट यू विल मेक इनटू एन इजी चेयर विद गुड सपोर्ट फॉर यू, बट प्लीज मेक श्योर दैट द chair on which you place a patient should also be no less comfortable। तो ये मैं एक चेयर आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं ये चेयर की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप जितनी नहीं भाई, तो उसको चूंकि 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे साथ साथ नहीं बैठना, तो उसकी चेयर भी कंफर्टेबल रिस्पेक्टेबल होनी चाहिए। डोंट प्लेस psychiatric patients on stools। वो जो मूव करने वाले स्टूल होते हैं ना, उनके ऊपर ना बिठाइए, आपकी बड़ी मेहरबानी। कैन नॉट, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि जो अक्रॉस द टेबल प्लेसमेंट है वो साइकियाट्रिक पेशेंट्स की मुनासिब नहीं। अगर आप समझते हैं कि आइडियल जगह अक्रॉस द टेबल है तो इसको ट्राई एंड चेंज दैट कॉन्सेप्ट, बिकॉज वो एक बड़ा अरिस्टोक्रेटिक या वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस वाली फीलिंग देता है, या जैसे आप प्रिंसिपल साहब के दफ्तर चले गए, वो अक्रॉस द टेबल इतना बड़ा सा एग्जीक्यूटिव टेबल, उधर आपने मरीज को बिठाया हुआ, वो वैसे ही आपसे दूर हो जाएगा, क्योंकि आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसके अपीयरेंस और जनरल बिहेवियर पर कमेंट करने वाले हैं। बहुत जरूरी है कि आप उसको अपने 60 डिग्रीज पर बिठाइए। तो मैं इसकी प्लेसमेंट आपके सामने कर देता हूँ कि ये मैं बैठा, तो ये चेयर की प्लेसमेंट है यहाँ। सो 1 आर्म लेंथ पर चेयर प्लेस कीजिएगा। 45 to 60 डिग्री पर आप पेशेंट को अपने बिठाइएगा, जहां पर आप उसको चांस दे रहे हैं कि वो आप पूरी प्रोफाइल में उसे देख सके, वो आपको देख सके, और अगर मुमकिन हो और उसको जरूरत पड़े वो दूसरी तरफ भी देख सके, यानी आपसे जरा सा हट भी सके। ये प्लेसमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है इन एन आउट पेशेंट। अगर आप अपना ऑफिस बना रहे हैं तो उसके अंदर जरा इस बात का एहतमाम कीजिएगा। अच्छा जनाब,
अब जरा से मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा इंट्रोडक्टरी साइलेंस। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि साइकाइट्री में इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो साइकियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं उनमें से देयर आर मेनी पेशेंट्स हु कम टू यू हु आर वेरी शाय, हु आर वेरी पैरानॉइड, हु आर मे बी फोबिक, सोशली फोबिक। सो वो हो सकता है कि आपके साथ फौरन बात ना करना चाहिए। तो इस बात का एहतमाम करते हुए कि अभी तो ऐसा हुआ ही नहीं कि अभी आप को पता चल गया होगा उसकी क्या तशखीस या डायग्नोसिस है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि उसके लिए हम अरेंजमेंट करें इस बात की जिसको हम इंट्रोडक्टरी साइलेंस कहते हैं। तो लेट अस सपोज द पेशेंट हैज कम एंड सैट नेक्स्ट टू मी, सो स्ट्रेट अवे do not start to look straight into the eyes of that patient. Do not straight go into and say कि जी क्या मसला है आपका. Give them a little time to settle. और इस दौरान में you can actually welcome, तशरीफ रखिए, और उसके बाद आप start to doing something जिसमें कि आप उसे नहीं देख रहे हैं. You can actually have your copy ready. You can actually pick up your pen and put it in front of you if it is not already there. You can actually, अगर आप बीच में आने पेशेंट के आने से पहले अपने मोबाइल पर बात करे थे तो उसको दिखाते हुए you can actually put your mobile on a silent mode, if not put it off silent mode पे, जिससे आप उसको ये मैसेज दे रहे हैं कि जो काम आप प्रेपरेटरी कर रहे हैं वो उससे रिलेटेड जरूर है, लेकिन आप उसको मौका दे रहे हैं थोड़ा सा सेटल डाउन, फील एट होम, उसको थोड़ा टाइम दे, क्या जगह है, ये क्या कमरा है, ये कौन लोग हैं, ये क्या सेटिंग है, ये तो खैर कमरा बहुत रश्ड भी है, इसमें बेशुमार रिसाले किताबें पड़ी हुई, तो हर ओपीडी तो इस तरह नहीं होगा, हर दफ्तर भी ऐसे नहीं होगा, तो उसको बड़ी मैं ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा 30, 40, 50 सेकेंड में वो एक्लेमेटाइज हो जाएगा आपके कमरे से, इसके ऑक्सीजन लेवल से, इसकी हीटिंग से, इसकी लाइटिंग से, आपकी नशिस्त बर्खास्त से, जहां आप उस दौरान में ऐसे तमाम काम करने की कोशिश करें जिससे उसको रेलेवेंस तो लग रही है, लेकिन उसको ये नहीं लग रहा कि एकदम ये बंदा जो है ना ये मेरी तरफ मुतवज्जो होके मुझ पर जुमलों के साथ चढ़ दौड़ा. So this introductory silence period is very, very important. This is a very small thing. This is a nuance of psychiatric practice, but something that will serve you for a long period of time very well. अब जनाब जो अगली बात हम अपने मरीज के साथ करें वो जरा सा ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर जैसे अभी मेरे पास जो पेशेंट बैठे हैं उन्होंने सोचा है कि इसी दौरान में अपनी सहेली से भी बातें कर लें जबकि वो साइकाइट्रिस्ट से मिल लें, तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब जरा बात कर लें आपके मसले के बारे में. तो प्लीज स्टार्ट विद रेपो बिल्डिंग. रेपो बिल्डिंग इज यूजुअली अ सेंटेंस और टू, नॉट एलैबोरेट, जिससे कि उसको ये बंदे को लगे कि आपके और उसके दरमियान कहीं ना कहीं कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई ताल्लुक है, कुछ ना कुछ कॉमनैलिटी निकाली आपके और उनके दरमियान. तो आपने कहा कि पहली दफा आए अस्पताल, ये बड़ा मुश्किल रास्ता है यहाँ ढूंढना इस अस्पताल को. जी जी बिल्कुल, मुझे भी लगा कि बड़ा मुश्किल रास्ता है इस जगह को. मैं जब पहली दफा आया था ना यहाँ पर तो मैं भी भटक गया था, काफी देर के बाद मैं यहाँ अस्पताल पहुंचा था. बड़ी गर्मी है जी आज. हाँ जी वाकई बिल्कुल, मैं तो यहाँ एयर कंडीशन कमरे में बैठा हूँ, लेकिन मैं अभी गया था बाहर, मैंने देखा कि काफी वाकई बड़ी गर्मी. भीगे भी है क्या, बारिश हुई है बाहर? देखिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे पता ही नहीं चला बाहर बारिश हुई. अच्छा, अब इन जुमलों का ना किसी साइकियाट्रिक प्रॉब्लम के साथ कोई ताल्लुक, लेकिन इसका मकसद ये है कि आप एक इनफॉर्मल कनेक्शन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उस शख्स के साथ जो आपके ओपीडी में आए. इसको रेपो बिल्डिंग को आपने लंबा चौड़ा टाइम नहीं लेना, 30-40 सेकंड में ये हो जाएगी. तो इंट्रोडक्टरी साइलेंस तकरीबन आधे मिनट की, और ये भी तकरीबन आधे मिनट से 1 मिनट तक का इंटरेक्शन. अब हम आते हैं साइकाइट्री का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट when it comes to starting your conversation with a psychiatric patient. इसको मैं होली मिनट कहता हूँ.
आफ्टर हैविंग गिवन एन ओपनिंग स्टेटमेंट, जो मैं आपको भी डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि ओपनिंग स्टेटमेंट सजेस्टेड ओपनिंग स्टेटमेंट, इसका ये मतलब नहीं जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जो आप ओपनिंग स्टेटमेंट देते हैं वो गलत है. दिस जस्ट अ पैरेलल ओपनिंग स्टेटमेंट दैट आई वेरी स्ट्रांगली फील हैज हेल्प्ड मी ओवर द इयर्स इन माय एक्सपीरियंस. इज द होली मिनट. ये ओपनिंग स्टेटमेंट क्या है? पाकिस्तान में साइकियाट्रिस्ट के पास आना बड़ा मुश्किल फैसला होता है, तो बड़ी बात है आपने फैसला किया साइकियाट्रिस्ट के पास आने का. अक्सर लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है. रियली अप्रिशिएट तशरीफ लाने में यहाँ पर उनसे बात करने के लिए. जब आप बात कर रही होंगी तो मैं कुछ नोट्स भी बना रहा हूँ आपकी बातों के, तो कोई इतराज़ तो नहीं होगा आपको? हाँ, और दूसरा ये कि ये नोट्स मैं बनाऊंगा ये मैं यहाँ सामने ही रखूंगा आपके, और आप बेशक से एक उचटती सी निगाह उस पर भी डालिएगा. अगर आपको लगे ना कि मैं जो मैंने चीजें लिखूंगा अक्सर मैं आप ही की जुबान में उसे लिखूंगा, उर्दू या अंग्रेजी में जो आपने कहा होगा उसी तरह से इन्वर्टेड कॉमास में लिखा होगा. तो अगर आपको लगे कि मैंने कुछ गलत लिख दिया या गलत नोट्स बनाए तो प्लीज एक उचटती निगाह उस पर डालते रहिएगा और मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं कहीं गलत कुछ एंट्री करूँ. तो इससे ये होगा कि फिर हमें आसानी हो जाएगी बातचीत करते हुए. तो जी, और ये जो मैंने जी कहा है इसके बाद वो होली मिनट स्टार्ट होता है. 1 minute of silence where you are not expected to speak. ये पूरा मिनट गुजर सकता है जिसमें कि हो सकता है आप भी कोई बात नहीं करें और मरीज भी कोई बात नहीं करे. पूरा मिनट गुजर जाएगा किसी ने कोई बात नहीं की, लेकिन इस होली मिनट की इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है. आप इसमें यू कैन एक्चुअली कीप an angular look at the patient, try and see the non-verbal expressions of the patient, the posture of the patient, the style in which he or she is bending forward or going backwards in the seat, the positioning of the leg, the arms, all that. और मैं उनके बारे में एक जुमला भी आपसे कह देता हूँ, लेकिन इस 1 मिनट में आप इतनी वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता. इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि वो पेशेंट नीचे देख रहा है, आपकी तरफ देख रहा है, आसमान की तरफ देख रहा है, या आपसे परे देख रहा है, या वो खाली नजरों से खला को देख रहा है. ये सब के अपने अपने डिफरेंशियल्स हैं. एक मरीज जो इस 1 मिनट में कुछ भी नहीं करता और सिर्फ यूं नीचे करके यूं कर रहा है, extremely anxious, concerned, and ये एक ऐसा शख्स है जो कि अपनी गुफ्तगू में अल्फाज कम पाता है अपने इमोशंस की निस्बत. तो एक मिसमैच है उसके इमोशंस में और the words that he needs to express them. So he is enhancing his body to express things. Remember, emotions are not always easy to express in words. Very difficult actually to express in words. और एक शख्स है जो बैठते ही ऐसे हो जाते हैं, और ये वो शख्स है जो अभी आपका जायजा ले रहा है कि आप इस काबिल हैं भी कि उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले इंसान हैं, जो पर्ल्स उसके पास हैं, क्या वो आपको दे या ना दे. और एक शख्स जो है वो एकदम अपनी जेब में से एक कागज निकालता है और वो खोल के यहाँ सामने खोल के यूं रख के और आपकी तरफ अपनी कंप्लेंट्स को पढ़ के सुनाना चाहता है. ये वो शख्स है जो शायद ऑब्सेसिव कंपल्सिव और सीवियरली एंग्शियस इंसान है, क्योंकि उसको ये लगता था घर में बैठे हुए मैं मिस तो नहीं कर दूंगा वो पॉइंट. तो अभी देखिए कि इस 1 मिनट में कितनी इंफॉर्मेशन है, और एक आदमी जो है वो यूं यूं कर रहा है. यानी कि वो इस पैरानोया में है कि ये कमरे में कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही, ये और तो नहीं लोग सुन रहे हैं मेरी गुफ्तगू को. इस एक होली मिनट में कितने डिफरेंशियल्स हैं जो आप समझते हैं. एक शख्स है वो यूं बैठ गया,
तो ये वो शख्स है जो शायद गिल्ट रिडन है, जो शायद डिप्रेस्ड है, शायद किसी ग्रीफ में है, और एक शख्स है जो आपकी तरफ मुस्कुरा रहा है और आते ही वो इस 1 मिनट में गुनगुनाना शुरू कर देता है। तो क्या इससे कहीं दूर जाने की जरूरत है फर्दर कि उसको कितनी देर लगेगी आपको उसको डायग्नोज करने में? कि जो आती आपको एक नाच सुनानी शुरू हो गया या गाना सुनानी शुरू हो गया है, और उसके गाने के कंटेंट जो गुनगुना रहा है उससे भी आप उसकी बहुत सारी तशखीस कर सकेंगे। सो प्लीज एहतमाम कीजिएगा अपनी प्रैक्टिस में इस 1 मिनट के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से को, जिसका मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूँ। अपनी गुफ्तगू का आगाज फिर इस वक्त वो होली मिनट में वो हो सकता है फिर अपनी प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट कर ले, तो 1 मिनट तक उसको इंटरप्ट ना कीजिएगा, जो वो कहना चाहते हैं उसको कहने। बीच में अगर वो चुप भी हो जाए तो भी आप फिक्र ना कीजिएगा, लेकिन उनको बात करते रहने दीजिएगा। 1 मिनट तक उनको डिस्टर्ब ना कीजिएगा, जो वो कहना चाहते हैं जितना इररेलेवेंट आपको लगे, जितना फजूल लगे, 1 मिनट उनको बात करने दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब जब आपकी बात शुरू होगी तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहां से ना शुरू कीजिएगा कि आप बीमार कब से हुए। एक जुमला है जो मैंने अपने इन सालों में सीखा है, जो विच वर्क्स अ लिटिल बेटर देन कि आप कब से बीमार हैं वर्सेस कि आपको कब याद पड़ता है कि आप बिल्कुल सेहतमंद हुआ करते थे। तो ये जो सेहतमंद होने की कैफियत है, ये एक तरह से आपके सामने कैनवस लगा देगी। उस कैनवस पे फिर जो साफ कैनवस है उस पे आप उसकी बीमारी की पेंटिंग बनाएंगे या स्केच बनाएंगे तो ज्यादा अच्छी तस्वीर सामने आएगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और फिर जब वो आपसे जिक्र शुरू करेगा तो उसके जो मौजूदा मसाइल हैं यहाँ पर उन्हें ले आएंगे कि अच्छा तो ये उस जमाने की बात है, आज से 7 साल पहले सत्ता बिल्कुल ठीक थी, तो आजकल जो चीज आपको मेरे पास लेकर आई है यहाँ आज, वो क्या मसाइल है? तो यहाँ ये जो जुमला है कि वो क्या मसाइल हैं, ये सिम्टम्स एट प्रेजेंट पर आ जाएंगे। फिर हर जो सिम्टम किया जा रहा है उसको आप, अगर आपको लगे कि आप भूल सकते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप उनके सामने वर्बेटम लिखिएगा। वर्बेटम जो उन्होंने लफ्ज कहे, डू नॉट ट्रांसलेट इट प्लीज, जो उन्होंने कहा है वो लिखना है, शब्दों के साथ लिखिएगा। फिर हर सिम्टम की शिद्दत, कितने उदास हैं आप, कितना खौफ आप महसूस करते हैं, शिद्दत, बहुत, दरमियानी, कम, मुझे इतनी तकरीबन तवक्को है। कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है कि एक शख्स की उदासी और दूसरे शख्स की उदासी में बहुत फर्क होता है। कुछ लोग जो हैं वो एक खास मौके पे उदास होते हैं, दिन के एक खास हिस्से में उदास होते हैं, वो कुछ एक खास वाक़े की बुनियाद पर उदास होते हैं, और कुछ मुसलसल बगैर वजह के उदास होते हैं। तो ये उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज है। फिर वो अपनी उदासी को एक्सप्लेन भी अलग अलग तरीके से करते हैं। और फिर आप उनसे पूछिएगा कि ये कब और कैसे शुरू। ये जो एक 3 कंपोनेंट्स हैं, ये उस सिम्टम के बारे में जो उन्होंने बताए थे कि जो रिसेंटली उनको यहाँ लेकर आए। अब देखिए अगली बात क्या है, यहाँ रुकना नहीं है, आपने एसोसिएटेड सिम्टम्स पूछने हैं इन्होंने, और ये एसोसिएटेड सिम्टम्स मिनिमली दे शुड बी अबाउट ओसीडी, डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस। और ये जब हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में मैं ये बाकायदा आपको जुमले पहुंचाऊंगा कि ओसीडी का क्या जुमला है जो आज का मौजू नहीं है, क्या जुमला है जिससे आप डिल्यूजन असेस करते हैं, क्या जुमला है हेलुसिनेशन असेस करने का, सुइसिडैलिटी, हार्म टू सेल्फ और टू अदर्स, ड्रग्स, पर्टिकुलरली सब्सटेंस अब्यूज, जो उनको उनके अलावा सब्सटेंस अब्यूज के अलावा जो प्रिस्क्राइब्ड मिसयूज्ड या अब्यूज ड्रग्स हैं। लेकिन फिर अगली चीज जो आती है वो आती है इम्पैक्ट। ओपीडी में आपने सेवेरिटी असेस करने के लिए शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि डिसाइड करेगी ये भी जो डिसीजंस आप करना चाहते हैं उनके बारे में, वो ये है कि इनका इम्पैक्ट सिम्टम्स का आपकी जिंदगी पर क्या हुआ, आपकी जिस्मानी कैफियत पर इसका क्या असर हुआ, आपकी नींद पर क्या हुआ, आपकी भूख पर क्या हुआ, आपके वजन पर क्या हुआ, आपकी सेक्सुअल ड्राइव पर या लिबिडो पर इसके क्या असरात मुरतब हुए। ये चीजों का जिक्र करना, बायोलॉजिकल फंक्शनिंग जिसको कहते हैं। इसके साथ साथ अगर मैंने तय कर लिया, आप क्या करती हैं? अच्छा, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, तो जो ये मरीज देखने की कैफियत हैं, ये जो सारे सिम्टम्स आपने मुझे बताए,
इसने आपके इस रोल को एज ए साइकोलॉजिस्ट किस तरह मुतासिर किया, ये भी पूछना बहुत जरूरी। कम हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं, आप पहले 2 मरीज देखते थे, आप तो 6 भी देख लेते तो थकते ही नहीं है, और अब तो जी मुझसे 1 भी नहीं देखा जाता। सो इम्पैक्ट ऑन योर ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग। इसके अलावा आप क्या करती हैं, यानी साइकोलॉजिस्ट तो आप हैं, और क्या क्या रोल्स हैं आपके? कुछ भी नहीं करती और कुछ भी नहीं करती, बस घर है वो तो किया ही नहीं जाता आपसे। तो जो जैसे आप किसी घर में रहती हैं तो शादीशुदा हैं जी, शादीशुदा, तो जो आपकी शादीशुदा जिंदगी के रोल हैं, जो आपके एक वाइफ का रोल है, एक मदर का रोल है, डॉटर इन लॉ का रोल है, जो आपके मुख्तलिफ सोशल रोल्स हैं, उन पर उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, और क्या इस सारी सिचुएशंस एंड सिम्टम्स ने आपको आपकी जो अर्निंग्स थी ऑन अ डेली बेसिस, इफ देयर वर एनी अर्निंग्स, उनको मुतासिर किया या नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इम्पैक्ट के। अक्सर मैंने देखा है कि इम्तिहानों में खासतौर पर जिस वक्त मैं लोगों से पूछता हूँ कि जनाब इम्पैक्ट क्या हुआ, तो वो बायोलॉजिकल फंक्शंस पे आके रुक जाते, नहीं, इससे थोड़ा सा आगे जाइएगा। अब यहाँ पर मैं आपसे अर्ज करूंगा कि एक सानिए के लिए रुक जाएं, और लिस्ट ऑफ सिम्टम्स आपके सामने है, और hallucinations, delusions, ये सारी सुधर, ये सारी चीजों का अब इस्टेब्लिश करना है मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन पे जाके। अक्सर हम ये गलती करते हैं ओपीडी सेटिंग्स में कि एकदम फैमिली हिस्ट्री में और उन चीजों में चले जाते हैं, इससे बहुत सारा वक्त आपका खराब होता है। इमीडिएटली आ जाइए मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में, इसके फौरन बाद यहाँ सिम्टम्स को अब आपने साइंस में ट्रांसलेट कर लेना है। कैसे करना है ये इंशाल्लाह एक अलहदा सेशन है इसके लिए जो मैंने डेडिकेट किया, आपके साथ बात होगी कि सिम्टम्स को साइंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ये मौका मैं यहाँ सिर्फ आइडेंटिफाई करके दे रहा हूँ कि immediately after symptoms and associated symptoms go to mental state examination in an outpatient setting, not in detailed indoor history, वहाँ ऐसा नहीं करेंगे। इसके बाद आपको जो अगली चीज पता करनी है वो ये है कि ओपीडी सेटिंग्स में कभी ना भूलिएगा कि उस शख्स की मेडिकल, सर्जिकल, गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस और मेडिकेशन इस वक्त क्या है। दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन लेटर एज पेशेंट्स। बहुत सारे साइकियाट्रिक सिम्टम्स अक्सर मेडिकल, गायनेकोलॉजिकल, सर्जिकल, या वो दवाइयां जो वो खा रहे हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस के नतीजे में हो रहे होते हैं, तो उनको कहीं आउट पेशेंट सेटिंग्स में आप ना भूल जाइएगा। ऑफ कोर्स इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि ये उनका पहली दफा विजिट है, पहले साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स हो चुके हैं। अगर हो चुके हैं तो जनाब आपको दवाई क्या मिली थी, और आपकी इंटरवेंशंस क्या थी, ईसीटी हुई थी कि नहीं हुई थी, क्या हुआ था, और फिर आपने वो दवाइयां ली कि नहीं ली, और अगर ली तो उनका आपके ऊपर इम्पैक्ट क्या हुआ। Remember, once you have, for example, with first episode of depression, you have responded to clomipramine or imipramine. This time also you are likely to, in the next depressive episode, again respond to the same medication. तो इसलिए ये बातें बड़ी important है। Adverse childhood experiences का एक ऐसा जुमला जो कि मैंने हाल ही में अपने कॉलीग प्रोफेसर फरीद मिनाज साहब से सीखा, हमेशा सीखता रहता हूँ अपने दोस्तों से, अपने साथियों से। उन्होंने कहा कि एक बड़ा अच्छा जुमला है, डायरेक्टली ये पूछने के लिए कि आपकी कोई हिस्ट्री सेक्सुअल अब्यूज की बचपन में है, जो कि इन अ फर्स्ट कांटेक्ट कैन बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, जिसके साथ आपको मुश्किल से 10 मिनट हुए बात करते हुए। उनसे कहिएगा कि ये बातें तो बहुत आसानी से आपने मुझे बता दी, कोई ऐसी भी बात है जो आप मुझे बताना तो चाहती हैं लेकिन आपको लगता है कि शायद ये मौका नहीं है, तो याद रखिए अगर अभी आप बताना चाहें तो जरूर बताइएगा, लेकिन अगर अभी नहीं तो जब आपका जी करे तब बता दीजिए। ऐसी कोई बात है तो उनका हाँ या ना कहना ही काफी होगा इस वक्त। जिस अंदाज से वो हाँ या ना करेंगे, उससे जिस अंदाज से वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ या आपकी तरफ फेरेंगे, उसी से आपको जवाब मिल जाएगा। जिस अंदाज से उनकी आईज ऊपर नीचे आप के लेफ्ट पर जाएंगी, उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ऐसी कोई हिस्ट्री है या नहीं ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की हिस्ट्री के बगैर कोई साइकियाट्रिक हिस्ट्री मुकम्मल नहीं है। टेक माई वर्ड फॉर इट बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। और ये भी याद रखिए कि फैमिली हिस्ट्री का यहाँ सिर्फ बरसबीर तस्करा, आपके खानदान में किसी को नफ्सियाती या कोई पुरानी फैमिली में बीमारियां होती हैं, चल रही हैं? नहीं, मुझे तो नहीं। बस यहाँ बहुत ज्यादा गहराई में इस वक्त जाने की जरूरत नहीं है, और आपके अब्बा के कितने बच्चे हैं और अम्मी के कितने बच्चे हैं वगैरह वाली डिटेल्स जो है ये बाद में रखेंगे, ओपीडी में ये लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ मैं आपसे अर्ज करूँ कि फॉर साइकाइट्रिस्ट्स प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू आर फर्स्ट अ डॉक्टर एंड देन अ साइकाइट्रिस्ट। नाउ यू
some of my colleagues who might be psychologists, psychotherapists would bear with me, लेकिन psychiatrists के पास जो सच लोग आते हैं तो उनसे expect करते हैं कि psychiatrist उनके साथ ये तमाम चीजें जो उसके OPD में पड़ी हैं, और ये फंडोस्कोप है, ये वो उनके साथ इस्तेमाल करेगा, वो उनके ये तमाम गैजेट्स जो उसके ऑफिस में मौजूद हैं ये वो इस्तेमाल करेगा। ये उसने डेकोरेशन के लिए नहीं रखे हुए, वो डॉक्टर से मिलने आया तो उसकी पल्स लेना, उसका टेम्परेचर लेना। और आजकल तो मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आजकल अगर आप देख रहे हैं पेशेंट्स को तो फिर तो उनकी आपने ये भी चेक करना होगा कि उनकी ऑक्सीजनेशन कितनी है। तो आप इस तरह की एक चीज़ भी रख सकते हैं अपने ऑफिस में, वो ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ ज़रूर कीजिए। उसे ना सिर्फ ये कि इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी लेकिन एक ट्रस्ट पैदा होगा बिटवीन यू एंड द पेशेंट। सो ये आई वॉश नहीं है, ये ना ख्याल कीजिएगा कि आपने बस मतलब ये लगाया और वैसे आप यानी गप्पे लगा रहे हैं और मजाक कर रहे हैं उसके साथ। नहीं, धोखाधड़ी नहीं है, कवर अप स्टोरी नहीं है, आई वॉश नहीं है। यू एक्चुअली आर इंटरेस्टेड इन द फिजिकल हेल्थ ऑफ द पेशेंट। I mean, I do not expect it from psychologists to do it, but please, as a psychiatrist, you must use these gadgets on your patients. They want to experience the examination part of a psychiatrist and his skills as a doctor. So इसको जरूर कीजिएगा, ये बहुत important है। मैं यहाँ खास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा, रिफ्लेक्सेस जरूर कीजिएगा पेशेंट्स की। ये जो चीज़ है ये बहुत important है, और इन रिफ्लेक्सेस को खास तौर पे नी जर्क से आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। कभी इस पर तफसील से मजीद बात करेंगे। आजकल जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनमें BMI चेक करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको ये गैजेट दिखाना चाहता हूँ, यहाँ खड़े होइएगा। तो ये एक गैजेट है जिससे कि आप तय कर सकते हैं, अगर आप देख रहे हैं जी, उतर आइए आप। इसी से मुझे इनकी हाइट भी पता चल गई, मीटर स्क्वायर, और मुझे इनका इन किलोग्राम पता चल गया। बहुत आसानी से आप एक छोटा सा टेबल भी बना के रख सकते हैं जहाँ पर, वरना आपके जो मोबाइल है उसके अंदर भी ऐप है जिससे आप ये तय कर सकेंगे कि BMI क्या है। मैं जरा सी आखिरी बातें आपके साथ कर लूँ कि इसके अलावा आपने और क्या क्या चीजें, ये जो कुछ भी किया है जनाब आपने अभी तक, इससे मकसद ये था कि तकरीबन 10 से 12 मिनट में, और इससे कम में अगर आप OPD का मरीज देख रहे हैं जनाब तो फिर आप तो मरीज नहीं देख रहे, ये मैं आपको श्योर कर रहा हूँ। तो फिर ये OPD है जिससे मरीज आपको देखने आते हैं। तो मुबारक हो, जैसे बहुत सारे पाकिस्तान के अवाम अपने पीर साहब को देखने जाते हैं, उनका दीदार हासिल करने के लिए जाते हैं। तो मरीज आपको आपका दीदार करने आए थे, अगर आपके पास 10 मिनट भी उनके पास नहीं और आप कहते हैं मेरा तो OPD ही 130 लोगों का है, मैं क्या करूं, तो यकीन कीजिए कि 130 लोगों को ये फीलिंग देने की कि वो साइकियाट्रिस्ट को देखकर आए हैं, बेहतर है कि आप 50 या 40 या 30 लोगों को 10-10 मिनट देकर ये कैफियत तो दे दे कि आपने उन्हें देखा है। If you do not have even 10 minutes for your patients in OPDs, this is no OPD at all. Close it. Close it. We are not running a service at all. So 10 से 12 मिनट में ये सारे काम हो सकते हैं जिनका मैंने आपसे जिक्र किया है, और अगर आप एफिशिएंट होते जाएंगे तो फिर ये 10 से 12 मिनट और भी कम हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्सेस दैट यू वुड डेवलप, जिनका मैंने आपसे जिक्र किया है। नतीजे में आपके पास एक प्रोविजनल डायग्नोसिस इसी सफ़े के ऊपर आनी चाहिए, इस सफ़े पे आपके एक प्रोविजनल डायग्नोसिस आ जानी चाहिए अब तक, विद ए मेडिकल डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ना अगेन आई एम टॉकिंग टू साइकियाट्रिस्ट कि वो ये जरूर सोच लें कि OPD में, फर्स्ट OPD में ये एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है कि यही सेट ऑफ सिम्टम्स, साइंस दैट यू हैव एलिसिटेड, कुड इट आल्सो बी बिकॉज ऑफ अ मेडिकल कंडीशन? वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने किसी और साइकोलॉजिकल उसका एंगल का जिक्र नहीं किया, मैंने कोई साइकोडायनामिक और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी और ये वाली बातों का जिक्र नहीं किया। OPD में एस्टैब्लिश करना बड़ा जरूरी है। तो अगर है तो इसकी बुनियाद पर आपने लैब्स असेस करने हैं और एवेल्युएशन करनी है साइकोमेट्रिक, और वहाँ पर आपके जो साइकोलॉजिस्ट कॉलीग्स हैं वो आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट करने के लिए असिस्ट करेंगे। आपको लैब्स जो हैं वो आपको असिस्ट करेंगी टू रूल आउट
दी मेडिकल डिफरेंशियल्स। आपकी प्रोविजनल डायग्नोसिस को सपोर्ट कौन करेगा? साइकोलॉजिस्ट विद साइकोमेट्रिक्स। और आपके मेडिकल डिफरेंशियल को कौन सपोर्ट करेगा? आपकी लैब। अब जनाब रुक जाइएगा और परूजल कीजिएगा वो रिकॉर्ड जो बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास लेकर आए। मैं 1 मिनट लूंगा आपसे कि ये रिकॉर्ड्स जो अभी आप देखने वाले हैं इनको तसल्ली से देखिएगा, 1-1.5 मिनट 2 मिनट देखिएगा कि ये कहाँ से शुरू हुए, इनको पहले क्या ट्रीटमेंट मिली वगैरह वगैरह। और फिर अब आपकी बारी आ जाएगी ऑफ राइटिंग अ प्रिस्क्रिप्शन। तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि यहाँ थोड़ा सा इस पर मैं इंशाल्लाह एक और टॉक दूंगा, हाउ टू मैच सिम्टम्स विद रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स यहाँ पर हैं न्यूरोनल रिसेप्टर्स। तो जो सिम्टम्स और साइंस आपने लिस्टेड किए थे, अब इनको मैच कीजिएगा विद रिसेप्टर्स। ब्रेन रिसेप्टर्स ये कोलिनर्जिक हैं, ये एड्रिनर्जिक हैं, ये डोपामिनर्जिक हैं, ये गाबामिनर्जिक हैं, ये हाइपोथैलेमिक हैं, ये सिंपैथेटिक हैं, ये पैरासिम्पैथेटिक हैं। ये डिस्टर्ब्ड बायोलॉजिकल फंक्शंस किस लेवल पर? ये डायनल रिदम खराब हुआ है या डिसोम्निया हुआ है, ये डिस्टर्ब्ड स्लीप हुई। यहाँ पर आप रिसेप्टर्स को मैच करेंगे with signs and symptoms. This matching is crucial because it is on this basis that you would write your prescription. और अब जनाब जिस वक्त आप ये प्रिस्क्रिप्शन लिख लें तो एहतमाम कीजिएगा कि यहाँ आप इंगेज करें अब उनके उस फैमिली मेंबर को जिसको वो बाहर छोड़ाएं जो यहीं बैठा था, और उनको इनवाइट अंदर करके ये कहिएगा, पर्टिकुलरली इन पेशेंट्स ऑफ obsessive compulsive disorder, in patients of psychosis, कि इन्वॉल्व करें आप फैमिली मेंबर को इस पेशेंट के साथ। तो अगर आपने फैसला किया कि इसको दाखिल कर लेंगे तो फिर दाखिले के बारे में उनको बता देंगे, और अगर आपने उनको वापस घर भेजने के बारे में कहा है तो जनाब घर भेजने के बारे में भी आप उनको ये बताएंगे कि इनको जो दवाइयां देकर आप जा रहे हैं ये डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट स्केड्यूल डॉट्स। ये पाकिस्तान के एक बहुत जबरदस्त नामवर साइकियाट्रिस्ट हैं डॉक्टर सईद फारूक, उनका कॉन्सेप्ट है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है आजकल, बहुत प्राइड लेते हैं उनकी इस कॉन्सेप्ट के बारे में। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट स्केड्यूल, कि आपने मरीज को दवाई देनी है, उनको पानी पिलाना है और फिर हेल्प करना है उनको, और बाद में असेस करना है कि उन्होंने वाकई वो दवाई निगल ली है या उन्होंने अपनी जुबान के नीचे रख ली। डाइट के बारे में बताना, और अगर कहीं आपने उनको रेफर किया है तो उसके बारे में बताना भी बहुत ज़रूरी होगा। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनमें फिर आप ऐड कर सकते हैं जो रिस्क्स इन्वॉल्व हैं। ये सब कुछ जो आपने कहा है इसका रिकॉर्ड करना 2 से 3 मिनट में क्रिस्पली बहुत ज़रूरी है, और अगली अपॉइंटमेंट देना भी बहुत ज़रूरी है। मैं सब लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका जो प्रिस्क्रिप्शन पैड है उसके सामने तो सब तफसीलात आपकी हैं, लेकिन इस पैड का जो पिछला हिस्सा है, इसी कागज़ का पिछला हिस्सा, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने पेशेंट्स और फैमिलीज़ के लिए यहाँ वो जो स्केच प्रोविजनल डायग्नोसिस का और रिसेप्टर्स का आपने अपने दिमाग में बनाया है वो मरीज के लिए जरूर यहाँ बना दीजिए कि आपको ये मसला है मेरी नजर में आज। ये एक डायग्राम है जो आप बनाते हैं, कभी मौका मिला और आपने इंटरेस्ट शो किया तो ये डायग्राम्स हम मुख्तलिफ बीमारियों के आपके साथ बनाना की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, एक स्किल है। लेकिन यहाँ इस जगह पर उनको इंस्ट्रक्शंस देना, डाइट के बारे में बताना, ये चीजें यहाँ आप लिख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस के तौर पर भी, और उनकी बीमारी के बारे में उनको तफसीलात बताने के बारे में भी। ये सब कुछ ओपीडी में करना पड़ेगा आपको अगर आप एक अच्छी आउट पेशेंट प्रैक्टिस करना चाहते हैं। मैं सिर्फ आपसे आखिरी बात करके इजाजत लूंगा, और वो ये है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। जैसे हमारा कलमा है ना, ला इलाहा, तो ला से शुरू होता है और फिर इल्लल्लाह पे जाता है। इसी तरह ये बहुत जरूरी है कि एक साइकियाट्रिस्ट को, एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को ओपीडी सेटिंग्स में क्या नहीं करना, वो मैं आपसे कह दूं कि कभी अपनी कंसल्टेशन ये जो करते हैं लोग के रिकॉर्ड जरा ला दें मुझे ट्रीटमेंट, लोग ला के फाइल आपके सामने रख देंगे, डॉक्टर साहब ये पहले इलाज होता है ये जरा देख लें। तो 90% लोग जो हैं वो ल्योरिन हो जाते हैं और वो उठा के मरीज ने चूंकि उनको दिया तो वो उनको पढ़ना शुरू। अभी मरीज से बात नहीं हुई, वो साइलेंट और वो गोल्डन 1 मिनट वगैरह तो पीछे रह गया, वो ओनली 1 मिनट तो गया। मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, उसके प्रीवियस रिकॉर्ड देने, दिस विल बायस यू। ये ना कीजिएगा, यहाँ से नहीं। मैंने भी आपको बताया कहाँ पर आपने देखना, जब आपने डायग्नोसिस बना लिए, आपने रिसेप्टिव एक्टिविटी क्रिएट कर ली है, आपने डिफरेंशियल्स बना ली,
अब आप उसके रिकॉर्ड्स देखिए, वो हेल्प करते हैं आपको. You might like to change and add some new dimensions to your diagnosis because of this record that has just come in. But don't start. बहुत सारे लोग ओपीडी में आपके पास अंदर आके कहेंगे कि मेरा मरीज बाहर बैठा है, डॉक्टर साहब मैं आपसे 2 मिनट उसके बारे में बात करना चाहता हूँ. No, we do not entertain family members without patience, no matter what. जल्दी में ना कीजिएगा, जो भी करें याद रखिएगा, जल्दी का काम शैतान का काम होता है. और यहाँ शैतान से क्या मुराद है? वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो लोगों को ये तस्वुर देता है कि मैंने आपको देख लिया है, यही शैतानी है, जबकि उन्हें नहीं देखा गया होता. कोशिश कीजिएगा कि जैसे मैंने इस सारी गुफ्तगू के दौरान इसको बंद रखा है, आप भी इसको साइलेंट पे रखिएगा. अपने कागजों पर ध्यान देना उस वक्त जिस वक्त मरीज बातें कर रहे हैं, अपने काम सीधे करते जाना. इसी दौरान आपने सोचा कि जो आपकी ताज़ा पब्लिकेशन आई है मैं उसको भी एक नजर दे. आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें, मैं सुन रहा हूँ, और साथ साथ वो अपना आर्टिकल भी साथ साथ देख रहे हैं. हाँ अच्छा बिल्कुल ठीक ठाक. ये जो कारनामे हैं, या इसी दौरान में आपने सोचा कि अखबार का मुताला भी कर लूँ, और जो 2-4 व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं जो कि बड़े अर्जेंट आए हुए हैं, उनके ऊपर भी मैं साथ ही रिस्पॉन्ड कर लूँ, उनको कहूँ कि आप अपनी गुफ्तगू जारी रखिएगा. ये वाले कारनामे प्लीज ना कीजिएगा. और ये भी मैं आपसे अर्ज कर दूं कि मरीजों की गुफ्तगू के दौरान उनको कॉमन सेंस जवाब ना दीजिएगा. मसलन वो आपसे कहेंगे कि डॉक्टर साहब मेरा वजन बढ़ता जा रहा है, तो आप कम खाया करें ना. डॉक्टर साहब मैं बड़ी कम खाने की कोशिश की है लेकिन मेरी डाइटिंग जो है ना कामयाब नहीं होती, तो आप किसी डाइटिशियन से मिल लेना. वो मैं थक जाता हूँ, आप एक्सरसाइज किया करें ना. आप शाम को पैदल नहीं चलते, शाम को पैदल चला करें. These are those common sense answers that they didn't come here all the way and sit outside in your OPD to listen to these totkas of Zubaida Khala or Zubaida Appa जो भी हैं वो, or and your Khala and my Khala about the things that you have learned कि आपने अलसी के तेल का 1 चम्मच पिया है, या आपने पता नहीं क्या आजकल वो कौन सी है एक और जड़ी बूटी वो आपने इस्तेमाल की है. भाई ये चूंकि इसके ऊपर अभी तक लैंसेट ने कोई पब्लिकेशन नहीं की है और नाइस गाइडलाइंस ने अभी खामोश हैं इस ऑलिव ऑयल की यूज़ पर जो आप इनको प्रिस्क्राइब करने वाले हैं. और आखिरी बात ये कि वो चीज़ें जो आपकी बड़ी काम आई हैं ज़िंदगी में और आपके पर्सनल बिलीफ का हिस्सा है, तो वो इस मरीज को ज़रा इनसे बचा के रखिएगा. ये आपके पर्सनल बिलीफ्स हैं. अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छे हैं, फलां तस्बीह करने से, फलां कपड़े पहनने से, फलां जगह जाने से आपने बहुत अच्छा फील किया था, तो प्लीज डू अ रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, मेक सम पब्लिकेशंस ऑन इट, एंड वंस इट इज प्रूव्ड दैट इट इज साइंटिफिकली वैलिड, डू एडवाइस. अदरवाइज प्लीज मत कीजिएगा इससे. और आखिरी बात, ये जो नोट्स बनाते हैं आप, इसके अंदर कॉन्फिडेंशियल डेटा एंड हैजर्डस डेटा मत डालिएगा ऑफ योर आउटपेशेंट रिकॉर्ड्स. तो साइंस हमने जरूर लिखने हैं, उसको टेक्निकल तरीके से लिखना है. राइट डिल्यूजन बट डू नॉट राइट बिलीव्स दैट ही देयर आर होमोसेक्सुअल्स अप्रोचिंग हिम. इस तरह के जुमले ना लिखिए. तो ये जो आउटपेशेंट रिकॉर्ड्स हैं, इनके अंदर एंट्रीज का बड़ा ख्याल रखिएगा. मेरी आज की गुफ्तगू एक मोनोलॉग था आपके साथ. इस दौरान में आपने कुछ सवालात भी आपके जहन में आए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके जहन में आए होंगे. तो हमारे पास आज वक्त तो कम है, लेकिन मैं आपसे यकीन दिलाता हूँ कि आप सब लोग चूंकि मेरे साथ रजिस्टर्ड हैं, तो मैं आप सबके इन सवालों का, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे ज़रूर भेजिएगा, मैं उनका आपको ज़रूर जवाब भी दूंगा. आज की गुफ्तगू में आपकी इनपुट ना होने के बराबर है, जिसके लिए मैं माजरत ख़्वाह हूँ आपसे. लेकिन I'll be very happy if you can write down your feedback on today's session. जब भी आपके पास वक्त मिले अगले 1 हफ्ते में, इस दौरान में हम कोशिश करेंगे कि आपके उन फीडबैक्स पर जो आप भेजें हम अगले सेशन में अमल कर सकें, आपके सवालों के जवाब आपको भेज सकें और शामिल कर सकें आपकी उन आरा को अपने अगले उस सेशन में, जो इंशाल्लाह अगली इतवार इसी वक्त आपके साथ होगा. खुदा हाफिज़.